हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। ओके, आई वेलकम यू ऑल इन द दृश्य बैच ऑफ क्लास 11 फिजिक्स इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और हम सब यहां पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। ओके, इन दिस चैप्टर I have almost completed the whole syllabus, that is need of measurement, unit of measurement, systems of unit, SI unit, fundamental and derived units, significant figure, and dimensions of physical quantities, and dimensional analysis and its application. Okay, but in today's lecture there is a topic known as the error analysis, which is very important from the IIT JEE and NEET point of view. Therefore, I have decided to put one more lecture based on the error analysis. Okay? Okay. So let's start. Error analysis. Error analysis. In class 10, you have done lots of practical. Or take a very simple example, that is, you have to measure the length of a room. You have to measure length of a room. And there are number of students take participation in measuring the length of the room, and the B1, first boy, second boy, third boy, fourth boy, and fifth boy. 4.99 meter, 4.98 meter, 4.97 meter, 5.01 meter, 5.02 meter. Okay, and the exact length of the room is 5 meter. Okay, the correct measurement of the length of the room is equal to the 5 meter, but there are 5 students who are measuring the length of the room, and they measured the length of the room as 4.99, 4.98, 4.97, 5.01 and 5.02. Means the values measured by the number of students is not certain. Is not certain means certain कब होता? जब वो एग्जैक्ट 5 मीटर को मीजर करते. क्लोज टू सर्टेन है, 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 बट इट इज नॉट सर्टेन. एग्जैक्ट सर्टेन नहीं है. मीन्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईरर. मीन्स मीजर कितना करना था? 5. मीजर कितना किया? 4.99. ईरर कितना हुआ? माइनस कर देंगे. 4.98 मेजर किया, 4.97 मेजर किए, 5.01 मेजर किए, 5.02 मेजर किए. मींस यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे, मींस जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली. यदि उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में यदि लिटिल बिट अनसर्टेनिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईरर बोलते हैं. ओके, so let us define let us define what is error. Error, the uncertainty in the measurement of a physical quantity is called as error. The uncertainty in the measurement of a physical quantity is called as error.
मीन्स यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी हो, मीन्स सर्टेन वैल्यू को हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर विल बी अ अनसर्टेनिटी विच विल कॉल्ड एज error. Clear है? Now we will discuss about the different types of error. Let us show different types of error. Okay. First, systematic error. First one is the systematic error. Second one is the random error. And third one is the ग्रास error. ओके, हम बात करेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या है. वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या है. तो सिस्टमेटिक एरर यह है बेटा, यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसके अंदर एरर आ रहा है, तो जो एरर है वो आइदर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, विच विल कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर. ओके, सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द एरर in the measurement of a physical quantity which is either positive or negative, called as systematic error. Called as systematic error. उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे. इसका मतलब क्या हो सकता है कि सिस्टमेटिक एरर आइदर पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है. जैसे अभी आपने 5 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया और एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 5, बट देयर आर 3 स्टूडेंट्स B1, B2, B3 एंड दे आर मेजरिंग the length of the room little bit less than the actual value, means the error is positive. But there are some students, that is B4 and B5, measuring the length of the room some more than the exact value, there will be a negative error. Clear है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर. अब सिस्टमेटिक एरर भी कई टाइप्स के होते हैं, तो हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर. टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर. टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर की हम बात करें, देयर आर नंबर ऑफ systematic errors. First, error due to instrument, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. error due to the instrument or instrumental error means यदि कोई आप एक्सपेरिमेंटल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो और उस इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो, तो ऑब्वियस है कि जो रिजल्ट आना है वो कभी ट्रू नहीं आएगा. मींस रिजल्ट इज नॉट गेटिंग एक्यूरेट. दैट्स व्हाई द रिजल्ट विल बी आइदर समथिंग लेस और मोर देन द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. Then this type of fault या this type of error is known as error due to instrument or instrumental error. Simply you can define it. It is the defect
or it is the error due to the defect in the experimental, defect in the instrument. ओके और आप उसको सही कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि किसी मेजरमेंट की एरर को हम सही नहीं कर सकते। यहां पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर है तो हम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मान लीजिए 5 इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर ले लीजिए, 5 वर्नियर कैलिपर्स है, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे इस एरर को? 5 वर्नियर कैलिपर से 1 बाय 1 हम मेजरमेंट को टेकअप करेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकाल देंगे। तो दिस इज द एरर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। सिंपली यू कैन राइट इट इज द डिफेक्ट ड्यू टू द it is the error due to the defect in the instrument which can be reduced by taking more readings by different instruments and then taking एवरेज। मीन्स मान लीजिए आप 5 बार लिए रीडिंग, 6 इंस्ट्रूमेंट थे 6 बार रीडिंग लिए, 7 इंस्ट्रूमेंट थे 7 बार रीडिंग लिए और उसके बाद सातों रीडिंग का आप एवरेज निकाल दीजिए। तो इस तरीके से जो एरर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट आ रहा था दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड वन, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को टेकअप कर रहे हैं, वी हैव टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर इज समथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर, जो रीडिंग ले रहा है, जो स्टूडेंट है, उससे वो फॉल्ट हो रहा है, पर्सनल फॉल्ट हो गया। ले रहा था रीडिंग, हैंड स्लिप कर गया, ले रहा था रीडिंग, नजर या नेकेड आई से क्लियरली रीडिंग को ले नहीं पाया, या समथिंग माइनर मिस्टेक्स। तो जो पर्सनल एरर है, मींस पर्सनली जो एरर आ रहे हैं, उसे उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। मींस पर्सनल डिफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। पर्सनल डिफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, पर्सनली क्या हो रहा है? फॉल्ट हो रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एरर ड्यू टू पर्सनल डिफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। अब इसको कैसे रिड्यूस करोगे? तो आप उसी सेम इंस्ट्रूमेंट से नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे एंड आफ्टर दैट एवरेज वैल्यू ले लोगे। इस तरीके से जो एरर आ रहा था पर्सनल एरर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। लिख सकते हो आप, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स, more readings by the same instrument, by the same instrument and then taking average। सिंपल से कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लीजिए एक ही एक्सपेरिमेंट से और उसके बाद आप उसका क्या ले लीजिए? एवरेज ले लीजिए। इस तरीके से एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। Now next one, that is the third, error due to least count। अब आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा होगा कि लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट क्या है? तो आप एक जान लीजिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंडेशन होती है
उसके लिए एक ऐसी वैल्यू होती है कि वह उस वैल्यू से कम की वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाएगा. दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वैल्यूज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी measured by a instrument is called as least count. The minimum amount of value that can be measured by a instrument is called as least count. जैसे आप में मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो 15 सेंटीमीटर की स्केल में जो है आप 1 mm से लेस वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते. मीन्स उस 15 सेंटीमीटर की स्केल के लिए 1 mm क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया. इस तरीके से नेचर में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉस, इनके भी जो है लिस्ट काउंट्स है, बिकॉज दे कैन नॉट मेजर द वैल्यू बिलो अ सर्टेन लिमिट. दैट लिमिट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट. मीन्स एक मिनिमम वैल्यू को वो मेजर कर सकता है. इसी तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनकी यदि लिस्ट काउंट के कारण एरर है, मीन्स उसका लिस्ट काउंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण जो एरर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट. एंड दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द रीडिंग विद मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. मींस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट को टेकअप कर रहा हो. क्लियर है? तो लिख सकते हैं, इट इज द एरर due to least count of the experimental and can be reduced by taking reading with more precise इंस्ट्रूमेंट. क्लियर है? तो आप पहले इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट पेज. सेकेंड वन, okay. Now the next one, that is the next error, that is the error due to the external cause. That is the fourth point, error due to external cause. अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है. आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है. एक्सटर्नल कॉज का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर यदि सडन चेंज हो जाए, और उस टेम्परेचर या प्रेशर के सडन चेंज हो जाने के कारण यदि जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर आ रहा है, देन दैट एरर विल बी कॉल्ड एज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज. एंड दिस कैन बी reduced by taking the reading in the ideal condition. By taking the reading in the ideal condition. तो आप डिफाइन कर सकते हो कि if there is sudden change in temperature or pressure, then the error due to it, then the error due to it is called as error due to external cause. Okay, and this can be reduced. This can be reduced by taking the reading in ideal condition. By taking the reading in ideal condition. Okay, and the last one, that is the error due to imperfection.
That is the last one. Error due to the imperfection. Error due to the imperfection means this error is due to the imperfection of the solid. It is the error due to the imperfection of the experimental. एक्सपेरिमेंटल जो एपरेटस है वो परफेक्ट नहीं है. इट मीन्स एरर आना स्वाभाविक है, एंड द एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द रीडिंग विद मोर परफेक्शन. ओके, विद मोर परफेक्शन. तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द एरर ड्यू टू imperfection of the experimental. मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ imperfection है, एंड कैन बी रिड्यूस्ड, और उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द रीडिंग विद मोर परफेक्शन. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो सिस्टमेटिक एरर है और इसके जो 5 मेजर टाइप्स है वो आपको समझ में आया होगा. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द रैंडम एरर. नेम से क्लियर है कि रैंडम एरर मीन्स कोई फिक्स नहीं है, रैंडमली हो रहा है. जैसे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो और एरर आ रहा है, मीन्स एक मीन वैल्यू है, एक जीरो है. जैसे आप गैल्वेमीटर का एग्जांपल ले लीजिए, और आप मीटर ब्रिज के दूर जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो गैल्वेमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो उस जीरो के राइट साइड भी जाती है और लेफ्ट साइड भी जाती है. मीन्स पॉजिटिव एरर भी आता है और निगेटिव एरर भी आता है. इट मीन्स द एरर जो डिफ्लेक्शन है उस मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है और निगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है. तो इस तरीके की एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एरर. एंड आप कहोगे कि सर कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें रीडिंग कब लेनी है? जीरो पे, और जीरो पे वो कभी रीडिंग पहुंच ही नहीं रही है. वो आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है फ्लक्चुएशन होके, या तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है. तो इस तरीके की एरर को रिड्यूस करने के लिए उसी एक्सपेरिमेंट्स को और उसी इंस्ट्रूमेंट से हम बार बार रीडिंग लेंगे और आफ्टर दैट उसका हम एवरेज ले लेंगे. तो डिफाइन कैसे कर सकते हो? इफ देयर इज फ्लक्चुएशन in the reading in the positive direction or negative direction, then it is called as रैंडम एरर. देन इट्स कॉल्ड एज रैंडम एरर. अब हम बात करेंगे कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो. तो यू कैन राइट इट, दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स एंड देन एवरेज. And then average. ओके, एंड देन एवरेज. तो इस तरीके के एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एरर. नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द ग्रास एरर.
ओके, ग्रास ईरर क्या होगा बेटा कि यदि हम केयरलेसनेस के साथ हम कोई इंस्ट्रूमेंट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट केयरलेसनेस के साथ कर रहे हैं, तो उस समय जो ईरर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास ईरर बोलेंगे। एंड दिस ईरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द रीडिंग विद मोर केयर, बाय टेकिंग द रीडिंग विद मोर केयर। तो यू कैन डिफाइन इट, it is due to sheer carelessness of the measurement, sheer carelessness of the measurement, and can be reduced by taking measurement with more care। हम बहुत ही सावधानी से यदि हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो उस समय जो ईरर आने के चांसेस होंगे, ग्रास ईरर जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या होगा, कम होगा, ना के बराबर होगा। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे कि टाइप्स ऑफ ईरर्स है उसको हम कैसे और डीप में जाकर पढ़ पाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ईरर, मीन ईरर, रिलेटिव ईरर एंड परसेंटेज ईरर। ओके, नाउ नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ईरर, मीन ईरर, रिलेटिव ईरर एंड परसेंटेज ईरर। ये चार तरह के ईरर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेजरमेंट होंगे उसमें कैसे इस ईरर के थ्रू हम एग्जैक्ट ईरर को पा पाएंगे। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम जानेंगे एब्सोल्यूट ईरर। चारों को एक ही डेरिवेशन के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे। एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है? जैसे क्या है कहानी बेटा कि आपने लेंथ ऑफ द रूम को मेजर किया है, पहले समझ लीजिए। लेंथ ऑफ द रूम को आपने मेजर किया और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू या उसकी करेक्ट वैल्यू या उसकी ट्रू वैल्यू क्या थी? 5 मीटर। क्लियर है? अच्छा, B1, B2, B3, B4, B5 क्या मेजरमेंट था? 4.99, 4.98, 4.97, 5.01, 5.02। तो जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, ये क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको आप दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हो? ट्रू वैल्यू। और यहां पर क्या है? ये मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कोई स्टूडेंट है मेजर कर रहा है, ये पांचों मेजर्ड वैल्यू। तो हम यदि इस स्टैंडर्ड वैल्यू में से या ट्रू वैल्यू में से इस मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ईरर। दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ईरर। B2 की हम बात करेंगे। B2 स्टूडेंट की ये ट्रू ईरर, सॉरी ट्रू वैल्यू, उसमें से B2 की वैल्यू को माइनस कर दे, जो ईरर आएगा वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट ईरर। B3 को माइनस करेंगे ईरर, 5 में से 5.01, तो 5.01 में से जो है 5 को माइनस कर दीजिए, उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या आ जाएगा? ईरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो एब्सोल्यूट ईरर को, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू and measured value of a physical quantity is called as absolute error.
सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो बेटा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, it is defined as the magnitude of difference of true value or standard value and measured value of a physical quantity, of a physical quantity। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और बात है इनके मैग्नीट्यूड की तो इसका मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ओके, मान लेते हैं, लेट अस सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जा रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, और वहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमने n वैल्यूज को मेजर किया है, n वैल्यूज को। तो लेट अस सपोज a1 a2 a3 डॉट 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 an आर द measured value of a physical क्वांटिटी। ये मेजर्ड वैल्यू आ गया। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू आया है बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो यदि हम इसकी मीन को निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? देन मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विल बी, क्या हो जाएगा? ए मीन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन। ये क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू हो जाएगा। दिस मीन वैल्यू कैन बी फाइंड आउट by adding all the values and divided by the total number of terms. This a mean can be supposed to be standard value or a true value। क्यों इसको स्टैंडर्ड वैल्यू हम ले रहे हैं या क्यों ट्रू वैल्यू ले रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया कि इस मेजरमेंट को हमने कई बार किया और उसके बाद एवरेज लिया है। इस वे में हमारा जो एरर होगा वो क्या हो सकता है? मिनिमाइज हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस डिफरेंट टाइप्स के एरर देखे और मैक्सिमम केसेस में हमने देखा कि हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को लेके उसका हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो दिस ए मीन कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू। ये हो गई कहानी। दिस ए मीन कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू। ओके, अब देखो, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। तो हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नाउ एब्सोल्यूट एरर कैन बी ऑब्टेन्ड एज, देखिए, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे आप ऑब्टेन करोगे? डेल्टा A1, क्योंकि एरर है इक्वल टू
ए मीन इज टेकन एज ट्रू वैल्यू एंड उसमें से हम A1 की वैल्यू क्या माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट। नेक्स्ट A2, ए मीन माइनस A2। नेक्स्ट डेल्टा A3, ए मीन माइनस A3। इन दिस वे you can write delta an equal to a mean minus an। तो आपको ये क्या मिल गया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा an, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर हो गए। अब हम इस एब्सोल्यूट एरर का हम क्या लेने जा रहे हैं, मीन। नाउ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैन बी written as delta A mean is equal to delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus dot 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 plus delta an upon n. This implies 1 by n summation over I equal to 1 to n delta AI. तो डेल्टा ए मीन कैन बी रिटेन एज 1 upon n टाइम्स समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए आई। ओके, तो ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आप कैसे डिफाइन करोगे, जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उसका आप मीन निकाल लीजिए। मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल सा डिफिनेशन, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। आप लिख सकते हो मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। Mean of all absolute error is called as mean absolute error. Okay. Now next. अब ध्यान दीजिए आप कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने राइट किया है, उसकी आपको ट्रू वैल्यू भी पता है और साथ ही साथ उसका मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता है। तो यदि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को राइट करने की जरूरत है तो आप कैसे राइट कर सकते हो, हेंस अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे राइट कर सकते हो, ए मीन एंड डेल्टा ए मीन। क्यों, क्योंकि जो ए मीन है वह उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस डेल्टा ए मीन रिप्रेजेंट्स द मीन एब्सोल्यूट एरर। किसी न किसी मेजरमेंट में एरर होगा तो उसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर जो होगा वो मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और जैसा कि आप एग्जांपल्स में देखिए कि जो लेंथ ऑफ द रूम है, सम स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ द रूम लिटिल बिट लेस देन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड सम स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ द रूम लिटिल बिट मोर देन द स्टैंडर्ड वैल्यू, therefore the sign of plus minus is taken here. Okay, now the next, relative error। रिलेटिव एरर, रिलेटिव का मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक रिलेशन से चीजें जुड़ के आ रही हैं। तो रिलेटिव एरर के लिए दो चीजों का रिलेशन होना चाहिए और वह यहां पर वो दो चीजें कौन है, एक तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर and second one is the true value or standard value. Means relative error can be defined as the ratio of
mean absolute error and standard value of a given फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर और स्टैंडर्ड वैल्यू का जो रेशियो होगा या ट्रू वैल्यू का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो रिलेटिव एरर कैसे आप राइट कर सकते हो? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. It means this can be written as delta A mean upon A mean. This is called as a relative error. Okay, I hope कि आपको समझ में आया होगा. And now the last thing is that percentage error. Percentage error. The percentage of the relative error. The percentage of the relative error is called as percentage error. या the percentage relative error of a physical quantity is called as percentage error. तो आप डिफाइन कर सकते हो the percentage relative error of a physical quantity is called as percentage error. कैसे लिखोगे? परसेंटेज एरर इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो रिलेटिव एरर ये है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 और उसके आगे परसेंटेज का साइन. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100% का साइन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर. तो आपने क्या देखा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, और आफ्टर दैट द परसेंटेज एरर क्या होता है. ये जो आपने 4 तरीके के एरर देखे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, वह इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको इजी वे में डन कर पाओगे. यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए. फर्स्ट वन, फर्स्ट पेज, नाउ द सेकेंड पेज, and now the third page. Okay, now we will discuss the different propagation of errors as a combination of errors. Propagation of errors in combination of errors में हम कैसे देखेंगे कि वो जो errors है आइदर वो मैथमेटिकली एडिशन में आए हों, चाहे सब्ट्रैक्शन में निकालना हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में निकालना हो, चाहे डिवीजन के फॉर्म में निकालना हो, along with the पावर्स के फॉर्म में निकालना हो. ओके ओके, नेक्स्ट पेज. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसमें हम फर्स्ट हेडिंग पुट अप करेंगे एडिशन की. ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे. लेट अ फिजिकल क्वांटिटी इज written as x इक्वल टू a प्लस बी. कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप x इक्वल टू a प्लस बी के फॉर्म में लिखा गया, एक x फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक, यदि हम अनसर्टेनिटी की बात करें तो आपको अभी प्रीवियस पेज में हमने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे राइट कर सकते हो, am प्लस माइनस डेल्टा am.
तो आप उसी तरीके से इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी इसको आप कैसे राइट कर सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है? इसको आप कैसे राइट कर सकते हो? x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस बी, ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो आप देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट को यूज करोगे तो a प्लस बी की जगह, a प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? x राइट कर दीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपको बचेगा क्या राइट साइड? दिस इंप्लाइज प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। मीन्स आप एरर जो है वो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहां पर चार डिफरेंट टाइप्स के जो पॉसिबल एरर्स है वो आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से? 4 पॉसिबल एरर्स। 4 पॉसिबल एरर्स कैसे मिलेंगे आपको? पहला दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या दोनों माइनस ले लीजिए, माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। फर्स्ट पॉजिटिव ले लीजिए, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीन्स ये आपको 4 पॉसिबल एरर मिल गए। और जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो एरर हो वह मैक्सिमम हमें मिल जाए, और हम उसको क्या कर दें? माइनस कर दें उसके मीन वैल्यू से, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तक रीच कर पाए। मतलब जो एरर हो, मैक्सिमम एरर जितना भी हो उसको हम निकाल के हटा दें, तब ट्रू वैल्यू की तरफ क्या कर जाएंगे? टेंड कर जाएंगे। हेंस मैक्सिमम possible error will be डेल्टा x मैक्स इक्वल टू, दोनों को हम क्या ले लें? पॉजिटिव, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा। इट मीन्स आपने ये समझा कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हो और वहां पर 2 टर्मोलॉजी हो, ए और बी, 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के सम के फॉर्म में कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो, और यदि उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, तो उस रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर होगा वह सम ऑफ द एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स फिजिकल क्वांटिटी, सम ऑफ द एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडिशन के केस में कैसे हम एरर फाइंड आउट करेंगे। सो यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, सब्ट्रैक्शन। इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसे हम लोग करेंगे? लेट x बी ए फिजिकल क्वांटिटी such that x equal to a minus b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी, इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी वी हैव x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, x प्लस माइनस डेल्टा x
इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, और माइनस को ऑपरेट भी आप कर दोगे तो ये प्लस माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 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 प्लस, मीन्स अगेन हमें जो है प्लस माइनस के फॉर्म में भी मिल जाएगा। आप एक साइड कर लीजिए वैल्यूज को, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ you can see here that a minus b can be written as x by using first. This means using equation first we have x plus minus delta x equal to x plus minus delta a plus minus delta b. X cancel to each other. This implies plus minus delta x equal to plus minus delta a plus minus delta b. Okay, in this case again 4 possible errors which are as follows. 4 possible errors क्या हो जाएंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट एडिशन वाले जैसे, दोनों को आप पॉजिटिव कर सकते हो, दोनों को आप निगेटिव टेकअप कर सकते हो, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव सेकंड पॉजिटिव। मेरे भाई फिर से वही चीजें आ गई। इट मींस आप क्या कर सकते हो कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी डेल्टा एक्स मैक्स इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और दिस इज द पॉसिबल values of error in case of subtraction. Means what are you here observing? That is, sir, in the case of addition and in case of subtraction, you are saying that the maximum value of the possible error is equal to the sum of errors present in the individual physical quantity. Yes, it is correct. That is जब condition या जब कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में लिखी होगी, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स की वैल्यूज होंगी वह उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के एरर के सम के बराबर होगा। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, तो आज की क्लास में आप देखें कि एरर होता क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में दो केस देखे। फर्स्ट वन इज द एडिशन एंड सेकेंड वन इज द सब्ट्रैक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो we will describe the concept of combination of errors in the case of multiplication, division, and when the physical quantity is given in terms of powers and question based on it. Okay, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आप इसको प्रॉपर नोट डाउन किए होंगे और आपकी यही लगन, आपकी यही डेडिकेशन आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। थैंक यू सो मच।